हेलो एवरीवन, वेलकम टू द विकी ट्रेड। हिंदी व्यूअर्स के लिए आप सभी को विकी ट्रेड में स्वागत है। सो फर्स्ट विल स्टार्ट इन इंग्लिश सेशन एंड फॉर हिंदी व्यूअर्स आप लोग डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प में टाइमिंग दिया हुआ है और उसमें क्लिक करके आप टाइम स्टैम्प में आगे जा सकते हैं और उसी समय से हम हिंदी सेशन को स्टार्ट करेंगे। नाउ सो फॉर इंग्लिश व्यूअर्स टुडे विल डू द मार्केट एनालिसिस। We'll first go for Nifty 50. It is the 15-minute chart. We can see that market starts in a very good manner in a red candle, but it goes in a healthy manner. Then in the middle of the budget season, it slips down, but it controls itself again and closes nearer to the previous closing session. We can see that here today it only there is a negative for only minus 0.11%, which is not so much panic season. Overall, it is a good trading season, and those who are experienced trader may got this downfall. And congratulations to them if they uh, make good profit. So for next session, we'll do the market analysis. The next session on Monday, we can say that market created here a resistance range from 23,530 to 23,550. So it is already created a small resistance zone, and if market goes beyond it 23,550, a healthy green candle above it, or any type of any healthy green candle, if 70% of that green candle goes upward than the 23,550, then we can go for our next target, which one is 23,630. And after that same candle pattern, and we can think for much more higher in the Nifty 50. But if it goes down below to this, it created a resistance here. See, this is the hammer pattern, and below this hammer 23,430, we can say 23,420. Below this 23,420, we can go for a sale, which is up to the next target 23,270. So this was for the intraday session, and if we go to the day trading in the Nifty 50, we can see that there is a support level created on 21st November 2024, and this is the support range. And we can see that yesterday the candle was a very good healthy candle. Day candle was formed here yesterday, and today we can see that if, though it is a red candle, it is a quite indecisive candle, but it is formed above this support zone. So we can uh, say that market is in no mode to break this support level. It will go up because today there is a huge fall, but still uh, it didn't break this support range. So we can say that for the next some days for next some days we can see in a very good upward moving in the market. And if it is going upward, then what will be our next target? This red candle, we can see it is the 23,950 will be our next target. Then after 23,950, we'll go to 24,200. It will be our next target, next two target. But below this, if it goes down this, if it breaks this support level, then we can see a sell off, and below 23,800 we can see a heavy sell off. So this was for Nifty 50, and now we'll go to the Nifty Bank. In the Nifty Bank 15-minute chart, we can see again similar pattern like Nifty 50. It goes up in a healthy manner, but then it goes down, and it controls itself and closes in a midway. But we can see here the negativity is minus 0.16%, which is also not in a panic situation. And here you can see that there is it is a small fall, but here it is the hammer candle. So you can assume, you can say that tomorrow
there may be a tomorrow means the next session. There may be a we can see the rise in the Nifty bank, and it will be the next resistance. Above this, we should buy. Above, if market shows us a healthy movement in the upward direction, above 49,700, we can buy. And for this, our next resistance it will be 49,900 for a safe zone. We are playing safe here, so 49,900 will do exit here. And below this point, see, this is also a resistance, and below this point 49,430 we can see a fall around 49,300. From this is a small sell-off zone, which is from 49,400 to 49,300. But if we ignore this, below 49,300 we can see a healthy sell-off till 49,000. So here it is a 300 points we can get here. If we go for selling, if the market goes downward, we can go for selling, and it is a 300 point movement here. Then going to the Nifty Bank Day chart. See, as we analyzed before, that it is a W pattern it is creating, and we can see that here it was. I've already said that this is the resistance in the day candle, and it is forming W. So if it breaks here, we can go for the upward movement. But see, it breaks here today, but it is not such a green candle, not such a healthy candle. So we should wait for next one or two session. If it so healthy green candle, then you can go for the buying in the upward Nifty bank movement. And what will be our next resistance? Next is our 51,600. This will be our next resistance. But if it goes downward, this will be our next support zone. Next support zone 49, the lowest point of today's candle, that is 48,900. Below 48,900 we can go for a sell. And but for positional trading in this month, we can uh, how the market is reacting. If it goes upward, then we can see the movement of 51,600. Up to 600 we can see the market movement. So this was for today's session for English viewers. So now ये समय है हिंदी व्यूअर्स के लिए. हिंदी व्यूअर्स के लिए फर्स्ट हम चलेंगे निफ्टी 50 के 15 मिनट चार्ट की तरफ. 15 मिनट चार्ट निफ्टी 50 में हम देखेंगे कि आज मार्केट खुली एक रेड कैंडल के साथ, बट मगर ये बढ़ती रही. एक अच्छा मूवमेंट हमको दिखाई दिया, और फिर बीच बाजार में वो जो बजट के आधा सेशन में ये गिर गया, पर इसको ये अपने आप को संभाला, और पिछला जो क्लोजिंग पॉइंट है इसके आसपास ही जाकर बंद हुआ. और हम आज देख सकते हैं कि ये गिरा -0.11%. सो हम ये कह सकते हैं कि ये एक कोई बड़ा सा फल नहीं है. मार्केट ठीक ठाक है, ऐसा भी कुछ हलचल नहीं हुआ है. हाँ, जो कोई भी एक अभिज्ञतापूर्ण ट्रेडर होगा वो इस मौके का फ़ायदा ज़रूर उठाया होगा, कि मैं आज़म करता हूँ. सो वी कैन सी. सो अब हम चलेंगे कि इंट्राडे की तरफ. इंट्राडे अगर मंडे को हम जब मार्केट खुलेंगे तो मार्केट किस तरह रिएक्ट करेंगे. यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ पर एक छोटा सा रेजिस्टेंस जोन क्रिएट कर चुका है. फ्रॉम 23,530 टू 23,550 ये एक रेजिस्टेंस जोन है. और 23,550 के ऊपर अगर एक हेल्दी सा एक अच्छा सा ग्रीन कैंडल बन गया, तो हम ऊपर की तरफ निकल सकते हैं, और हमारा पहला रेजिस्टेंस होगा 23,600. अगर मार्केट गिर गया तो फिर इसके नीचे 23,425 के नीचे हम इसको सेल कर सकते हैं, और हमारा नेक्स्ट टारगेट ये होगा 23,000
23,300 हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा। फिर मार्केट जिस तरह से रिएक्ट कर रही है, मुझे तो ये उम्मीद है कि मार्केट ऊपर से तरफ जाएगा। देन हम चलेंगे निफ्टी 50 की डे चार्ट की तरफ। निफ्टी 50 की डे चार्ट की तरफ देखेंगे तो ये बिल्कुल इशारा दे रहा है कि मार्केट ऊपर की तरफ निकलेगा, क्योंकि 21 नवंबर 2024 के दिन ये जो अपना सपोर्ट लेवल क्रिएट किया था, आज का जो मार्केट है वो उसी सपोर्ट लेवल के ऊपर है। ये देखिए पिछला 2 दिन से डे कैंडल आपको दिखाई दे रहा है कि ये सभी के सभी इस सपोर्ट जोन के ऊपर है। और आज एक रेड सा कैंडल बना, एक रेड कैंडल बना, तब भी वो इस सपोर्ट जोन को ब्रेक नहीं कर पाई। तो इसीलिए हम ये मान के चलेंगे कि मार्केट यहाँ से कहीं रिकवर हो चुका है। तो मार्केट ये इंडिकेट करता है कि वो ऊपर की तरफ ही निकलेगा। पर अगर ऐसा कुछ नौबत आई कि मार्केट इस सपोर्ट इसको तोड़ दिया, तो हम एक पोजिशनल ट्रेडिंग में इसी महीने ये लो हम देख सकते हैं फिर से एक बार 22,800 के नीचे एक लो हमको फिर से देखने को मिलेगा। अगर ये ऊपर की तरफ जाएगा तो हमारा ये पहला रेजिस्टेंस होगा 23,960 का। 950 की तरफ लेकर चलिए, क्योंकि हम सेफ खेल रहे हैं तो सेफ चल रहे हैं तो 23,950, देन 24,200 हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा। तो फिर चलेंगे हम अभी निफ्टी बैंक की तरफ। निफ्टी बैंक का ये है 15 मिनट चार्ट। 15 मिनट चार्ट में हम देखेंगे कि वही निफ्टी के तरह ये भी एक खुली एक रेड कैंडल के साथ, पर एक हेल्दी मूवमेंट हमको दिखाई दिया। फिर बजट के बीच में ही वो मार्केट गिर गया, पर अपने आप को संभाला और फिर क्लोजिंग हुआ, पिछली क्लोजिंग के आसपास ही क्लोजिंग हुआ। और हम इंट्राडे के बेसिस पे देख सकते हैं कि यहाँ जो क्लोजिंग हुआ ये एक अच्छा सा हैमर के साथ क्लोजिंग हुआ है। सो ये हम आशा कर सकते हैं कि जो कल का जो नेक्स्ट सेशन मंडे का जो सेशन होगा, कहीं ना कहीं ये ग्रीन कैंडल के ऊपर मार्केट यहाँ से रिकवरी करने का इंडिकेशन दे रहा है। पर ये हमारा एक छोटा सा रेजिस्टेंस लेवल है, ये है 49,685, बट इसको हम मान कर लेंगे तो 49,700। 49,700 के ऊपर अगर एक हमको ग्रीन कैंडल हेल्दी सा दिखाई दे, फिर हम बाइंग की तरफ मुड़ेंगे और बाइंग की तरफ सेफली हम 49,900 के पास ही हम निकल जाएंगे। ये हमारा सेफ ट्रेड होगा। मगर अगर ये गिर गया तो इसके नीचे ये जो हैमर थी, एक हैमर क्रिएट हुआ था कल, इसके नीचे 49,300 के नीचे हम सेल करेंगे और हमारा ये नेक्स्ट टारगेट होगा 49,000। हमारा 300 पॉइंट का एक सेल मिलेगा और इसके नीचे तो हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जारी रहेगा, हम फिर से सेलिंग कर सकते हैं। और अभी हम जाएंगे डे चार्ट की तरफ। निफ्टी बैंक का डे चार्ट, जो हम पिछले कई दिनों से कहते आ रहे हैं कि एक डब्ल्यू फॉर्म क्रिएट कर रहा है। तो ये देखिए, ये हमारा यस्टरडे भी हम पिछले बार भी हम यही कहा था कि ये ही रेजिस्टेंस 49,630, अगर बैंक निफ्टी इस रेजिस्टेंस को क्रॉस कर गया तो ये एक अच्छा सा डब्ल्यू चार्ट फॉर्मेशन होगा। एंड हम देख सकते हैं कि हमारा नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस होगा पोजिशनल ट्रेडिंग में इसी महीने, हम देख सकते हैं कि 51,600 की तरफ मार्केट निकल जाएगा। और ये देखिए आज का जो डे कैंडल बना, ये तो क्रॉस किया हमारा जो रेजिस्टेंस थी 49,630, उसको तो क्रॉस किया, पर ये एक हेल्दी सा ग्रीन कैंडल नहीं है। तो हम एक और 2 सेशन को वेट करना पड़ेगा। अगर मंडे का सेशन को ये अच्छे तरीके से अच्छा सा एक हेल्दी सा ग्रीन कैंडल के साथ इसका कट कर लिया, देन हम ऊपर की तरफ निकलेंगे, बाय कर लेंगे। नहीं तो फिर आज का जो रेड कैंडल है, इसके जो लोएस्ट पॉइंट है ये है 49,000 के नीचे हम फिर से सेल करेंगे। और अगर ये पोजिशनल होगा और मार्केट इसी तरह नीचे जाएगा तो हम इस बार भी एक बड़ा सा फल देख सकते हैं, जो होगा 47,800।
सो आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय।